जरमिया 3 चैप्टर 4 चैप्टर हम पढ़ेंगे इंग्लिश में किंग्स जेम्स वर्शन में से, फिर पढ़ेंगे हिंदी में BSI बाइबल में से। थैंक यू जीसस, धन्यवाद करते हैं मेरे खुदा परमेश्वर। थैंक यू आपा फादर को। पवित्र आत्मा हमारी सहायता करने के लिए हम आपसे विनती करते हैं, हमारी मदद करो। आपके वचन हमें समझ आए ऐसा सहारा हमको दो, ऐसे अभिषेक हमको करो कि हम वचनों के अधीन रहे, ना कि झूठ और धोखे के अधीन रहे। यीशु नाम में आमीन आमीन आमीन। Chapter 3 God's great mercy in Judah's vile whoredom. Promises of the gospel to the penitent. First verse say, they say, if a man put away his wife and she go from him and become another man's, shall he return unto her again? Shall not that land be greatly polluted? But thou hast played the harlot with many lovers, yet return again to me, saith the Lord. Lift up thine eyes unto the high places, and see where thou hast not been lion with. In the ways hast thou sat for them as the Arabian in the wilderness, and thou hast polluted the land with thy whoredoms and with thy wickedness. Therefore the showers have been withholden, and there hath been no later rain, and thou hast a worse forehead. Thou refused to be ashamed. Wilt thou not from this time cry unto me, my father, thou art the guide of my youth? Will he reserve his anger forever? Will he keep it to the end? Behold, thou hast spoken and done evil things as thou couldest. The Lord said also unto me in the days of Josiah the king, hast thou seen that which a backsliding Israel had done? She is gone up upon every high mountain and under every green tree, and there hath played the harlot. And I said, after she had done all these things, turn thou unto me. But she returned not. And her treacherous sister Judah saw it, and I saw, when for all the causes whereby backsliding Israel committed adultery, I had put her away and given her a bill of divorce. Yet her treacherous sister Judah feared not, but went and played the harlot also. And it came to pass through the lightness of her whoredom that she defiled the land, and committed adultery with stones and with stocks. And yet for all this her treacherous sister Judah hath not turned unto me with her whole heart, but feignedly, saith the Lord. And the Lord said unto me, the backsliding Israel hath justified herself more than treacherous Judah. Go and proclaim these words toward the north, and say, return, thou backsliding Israel, saith the Lord, and I will not cause mine anger to fall upon you. For I am merciful, saith the Lord, and I will not keep anger forever. Only acknowledge thine iniquity, that thou hast transgressed against the Lord thy God, and hast scattered thy ways to the strangers under every green tree, and ye have not obeyed my voice, saith the Lord. Turn, O backsliding children, saith the Lord, for I am married unto you, and I will take you, one of a city and two of a family, and I will bring you to Zion, and I will give you pastors according to mine heart, which shall feed you with knowledge
knowledge and understanding. And it shall come to pass when ye be multiplied and increased in the land in those days, saith the Lord, they shall say no more the ark of the covenant of the Lord, neither shall it come to mind, neither shall they remember it, neither shall they visit it, neither shall they that be done any more. At that time they shall call Jerusalem the throne of the Lord, and all the nations shall be gathered unto it, to the name of the Lord, to Jerusalem. Neither shall they walk any more after the imagination of their evil heart. In those days the house of Judah shall walk with the house of Israel, and they shall come together out of the land of the north to the land that I have given for an inheritance unto your fathers. But I said, how shall I put thee among the children and give thee a pleasant land? But I said, how shall I put thee among the children and give thee a pleasant land, a goodly heritage of the hosts of nations? And I said, thou shalt call me my father, and shall not turn away from me. Surely, as a wife treacherously departed from her husband, so have ye dealt treacherously with me, O house of Israel, said the Lord. A voice was heard upon the high places, weeping and supplications of the children of Israel, for they have perverted their way, and they have forgotten the Lord their God. Return, ye backsliding children, and I will heal your backslidings. Behold, we come unto thee, for thou art the Lord our God. Truly in vain is salvation hoped for from the hills and from the multitude of mountains. Truly in the Lord our God is the salvation of Israel. For shame hath devoured the labor of our fathers from our youth, their flocks and their herds, their sons and their daughters. We lie down in our shame, and our confusion covereth us. For we have sinned against the Lord our God, we and our fathers, from our youth even unto this day, and have not obeyed the voice of the Lord our God. Chapter 4. God calls Israel by his promises. He exhorts Judah to repentance. Lamentations for Judah. First verse say, if thou wilt return, O Israel, saith the Lord, return unto me. If thou wilt put away thine abominations out of my sight, then shalt thou not remove. And thou shalt swear, the Lord liveth in truth, in judgment, and in righteousness, and the nations shall bless themselves in him, and in him shall they glory. For thus saith the Lord to the men of Judah and Jerusalem, break up your fallow ground, and sow not among thorns. Circumcise yourselves to the Lord, and take away the foreskins of your heart. Ye men of Judah and inhabitants of Jerusalem, lest my fury come forth like fire, and burn that none can quench it, because of the evil of your doings. Declare ye in Judah, and publish in Jerusalem, and say, blow ye the trumpet in the land, cry, gather together, and say, assemble yourselves, and let us go into the defenced cities. Set up the standard toward Zion. Retire, stay not, for I will bring evil from the north, and a great destruction. The lion is come up from his thicket, and the destroyer of the Gentiles is on his way. He is gone forth from his place to make thy land desolate, and thy cities shall be laid waste without an inhabitant. For this
Gird you with sackcloth, lament, and howl, for the fierce anger of the Lord is not turned back from us. And it shall come to pass at that day, saith the Lord, that the heart of the king shall perish, and the heart of the princes and the priests shall be astonished, and the prophets shall wonder. Then said I, Ah, Lord God, surely thou hast greatly deceived this people and Jerusalem, saying, Ye shall have peace, whereas the sword reacheth unto the soul. At that time shall it be said to this people and to Jerusalem, a dry wind of the high places in the wilderness toward the daughter of my people, not to fan nor to cleanse, even a full wind from those places shall come unto me. Now also will I give sentence against them. Behold, he shall come up as clouds, and his chariots shall be as a whirlwind. His horses are swifter than eagles. Woe unto us, for we are spoiled. O Jerusalem, wash thine heart from wickedness, that thou mayest be saved. How long shall thy vain thoughts lodge within thee? For a voice declareth from Dan, and publisheth affliction from Mount Ephraim. Make ye mention to the nations, behold, publish against Jerusalem that watchers come from a far country, and give out their voice against the cities of Judah. As keepers of a field are they against her round about, because she hath been rebellious against me. Said the Lord, thy way and thy doings have procured these things unto thee. This is thy wickedness, because it is bitter, because it reacheth unto thine heart. My bowels, I am pained at my very heart. My heart maketh a noise in me. I cannot hold my peace, because thou hast heard, O my soul, the sound of the trumpet, the alarm of war. Destruction upon destruction is cried, for the whole land is spoiled. Suddenly are my tents spoiled, and my curtains in a moment. How long shall I see the standard and hear the sound of trumpet? For my people is foolish, they have not known me. They are sottish children, and they have none understanding. They are wise to do evil, but to do good they have no knowledge. I beheld the earth, and lo, it was without form and void, and the heavens, and they had no light. I beheld the mountains, and lo, they trembled, and all the hills moved lightly. I beheld, and lo, there was no man, and all the birds of the heavens were fled. I beheld, and lo, the fruitful place was a wilderness, and all the cities thereof were broken down at the presence of the Lord, and by his fierce anger. For thus hath the Lord said, the whole land shall be desolate. Yet will I not make a full end. For this shall the earth mourn, and the heavens above. The be black above be black, because I have spoken it, I have purposed it, and will not repent, neither will I turn back from it. The whole city shall flee for the noise of the horsemen and bowmen. They shall go into thickets and climb up upon the rocks. Every city shall be forsaken, and not a man dwell therein. And when thou art spoiled, what wilt thou do? Though thou clothest thyself with crimson, though thou deckest thee with ornaments of gold,
though thou rentest thy face with painting, in vain shalt thou make thyself fair. Thy lovers will despise thee, they will seek thy life. For I have heard a voice as of a woman in travail, and the anguish as of her that bringeth forth her first child, the voice of the daughter of Zion, that bewaileth herself, that spreadeth her hands, saying, Woe is me now, for my soul is wearied because of murderers. हम हिंदी में पढ़ेंगे यिर्मयाह की भविष्यवाणी 3 अध्याय 4 अध्याय BSI बाइबल में से पढ़ रहे हैं। इसराइल एक दुराचरिणी पत्नी, पहले वचन से। वे कहते हैं, यदि कोई अपनी पत्नी को त्याग दे और वह उसके पास से जाकर दूसरे पुरुष को की हो जाए, तो वह पहला क्या उसके पास फिर जाएगा? क्या वह देश अति अशुद्ध न हो जाएगा? यहोवा की यह वाणी है कि तूने बहुत से प्रेमियों के साथ व्यभिचार किया है। क्या तू अब मेरी ओर फिरेगी? मुंडे टीलों की ओर आंखें उठाकर देख, ऐसा कौन सा स्थान है जहाँ तूने कुकर्म न किया हो? मार्गों में तू ऐसी बैठी जैसे एक अरबी जंगल में। तूने देश को अपने व्यभिचार से अशुद्ध कर दिया है। इसी कारण झड़ियों और बरसात की पिछली वर्षा नहीं होती, तो भी तेरा माथा वेश्या का सा है। तू लज्जित होना ही नहीं जानती। क्या तू अब मुझे पुकार कर कहेगी, हे मेरे पिता, तू ही मेरी जवानी का साथी है? क्या वह मन में सदा क्रोध रखे रहेगा? क्या वह उसको सदा बनाए रहेगा? तूने ऐसा कहा तो है, परंतु तूने बुरे काम प्रबलता के साथ किए हैं। हालेलुया। यही पौलुस कहता है कि तुम लोग अपने मन फिराव के रास्ते से चलिए, ना कि पश्चाताप की ज़रूरत पड़े। ये कारण है क्योंकि जैसे जैसे हम परमेश्वर का विश्वास छोड़कर कुछ और करने के लिए चले जाते हैं, तो वो एक व्यभिचारिणी का रूप धारण हो जाता है। ओके, और फिर हम दोबारा लौटकर परमेश्वर के पास आते हैं। फिर हम कुछ गलत करने के लिए चले जाते हैं, फिर हम परमेश्वर के पास आ जाते हैं। फिर हम जब करते रहते हैं अधर्म, दुष्टता और अलग अलग प्रकार के विश्वास रखना और कोई रीति रिवाज का पालन करके आ जाना और फिर परमेश्वर के पास आ जाना, ये जब हम करते हैं तो हमारी गिनती व्यभिचारिणी के रूप में हो जाती है। हाँ, एक वेश्या के रूप में हो जाती है और अशुद्धता हो जाता है हमारे जीवन में। ओके, और फिर परमेश्वर कहता है, क्या तुम सोचते हो फिर कि मैं तुम्हारी अब सुन लूँगा? ठीक है, मुझे गुस्सा नहीं रहेगा तुम्हारे बारे में, लेकिन जो मेरे पास है तुम उसका भाग नहीं पाएंगे उसके कारण, जो तुम कर रहे हो उसके कारण। हालेलुया। तो परमेश्वर कहता है, परंतु तूने बुरे काम प्रबलता के साथ किए हैं। ओके, तुम डरते नहीं हो गलत काम करने से। तुम डरते नहीं हो कि परमेश्वर मुझे देख रहा है, वो मुझे स्वीकारेगा क्या? वो मेरा पति है। ओके, और मैं उसके साथ विश्वास योग्य नहीं रहूँगी, तो क्या मेरा उसके पास दोबारा लौटकर जाना शुद्धता का रहेगा या नहीं रहेगा? अशुद्धता में बदल जाएगा वो। हालेलुया। और वो गुस्सा नहीं रखेगा, वो ले लेगा तुमको अपने पास, लेकिन वो कुछ भी ऐसा बेनिफिट्स नहीं देगा जो शुद्ध जीवन के बेनिफिट्स होते हैं। ओके, तो आप ध्यान रखिए, परमेश्वर शुद्धता के जीवन से, विश्वास योग्यता के जीवन से आपको, मुझको, हम मसीहों को अपनी पत्नी कहलाता है और हमारा वो पति कहलाता है। तो हमने एक दूसरे के अंदर विश्वास योग्यता से रहना है। चाहे आप छोटे बच्चे हो विश्वास जीवन में या फिर आप बुजुर्ग हो, हम मिल बांट कर सब इकट्ठे परमेश्वर के लिए हम विश्वास योग्यता से जीवन जीने वाली पत्नी है। पत्नियों को पति के अधीन रहने के लिए कहा है, हमको परमेश्वर के अधीन रहना है। ये हमारी पहचान है। अगर हम और कुछ विश्वास में चले जाएंगे और कुछ भक्ति में चले जाएंगे और कुछ रीति रिवाज पालन करने में चले जाएंगे, तो हम क्या हो गए? फिर अशुद्ध हो जाते हैं, व्यभिचारिणी हमारा नाम पड़ जाता है फिर। ओके, ध्यान रखिए, इस बात का महत्व ज़्यादा है हमारे जीवन में। इसराइल और यहूदी को
पश्चाताप करना अनिवार्य। फिर योशिय्याह राजा के दिनों में यहोवा ने मुझसे यह भी कहा, क्या तूने देखा कि भटकने वाले इस्राएल ने क्या किया है? उसने सब ऊंचे पहाड़ों पर और सब हरे पेड़ों के नीचे जा जाकर व्यभिचार किया है। तब मैंने सोचा, जब ये सब काम वह कर चुके तब मेरी ओर फिरेगी, परंतु वह न फिरी और उसके विश्वासघाती बहन यहूदा ने यह देखा। फिर मैंने देखा, जब मैंने भटकने वाली इस्राएल को उसके व्यभिचार करने के कारण त्याग कर उसे त्याग पत्र दे दिया, तो भी उसकी विश्वासघाती बहन यहूदा न डरी, वरन जाकर वह भी व्यभिचारिणी बन गई। उसके निर्लज्ज व्यभिचारिणी होने के कारण देश भी अशुद्ध हो गया और पत्थर और काठ के साथ भी व्यभिचार किया। इतने पर भी उसकी विश्वासघाती बहन यहूदा पूर्ण मन से मेरी ओर नहीं फिरी, परंतु कपट से। यहोवा की यही वाणी है। 11 वचन से आगे यहोवा ने मुझसे कहा, भटकने वाली इस्राएल विश्वासघाती यहूदा से कम दोषी निकली है। तू जाकर उत्तर दिशा में ये बातें प्रचार कर, यहोवा की यह वाणी है, हे भटकने वाली इस्राएल, लौट आ, मैं तुझ पर क्रोध की दृष्टि न करूँगा, क्योंकि यहोवा की यह वाणी है, मैं करुणामय हूँ। हालेलुया। मैं सर्वदा क्रोध न रखे रहूँगा। हालेलुया। मैं केवल अपना यह अधर्म मान ले कि तू अपने परमेश्वर यहोवा से फिर गई और सब हरे पेड़ों के तले इधर उधर दूसरों के पास गई और मेरी बातों को नहीं माना। यहोवा की यही वाणी है। लेकिन फिर भी परमेश्वर और एक चांस देता है। हालेलुया। वो कहता है, ठीक है, चल तू मुझे सॉरी कह दे और फिर अपने काम मान ले कि तूने गलती की थी और अब तू वो नहीं करना चाहती, मन फिरा ले अपना। ओके। 14 वचन, हे भटकने वाले लड़कों, लौट आओ, क्योंकि मैं तुम्हारा स्वामी हूँ। यहोवा की यह वाणी है, तुम्हारे प्रत्येक नगर पीछे एक और प्रत्येक कुल पीछे 2 को लेकर मैं सिय्योन में पहुँचा दूंगा। मैं तुम्हें अपने मन के अनुकूल चरवाहे दूंगा, जो ज्ञान और बुद्धि से तुम्हें चराएंगे। हालेलुया। उन दिनों में अब जब तुम इस देश में बढ़ो और फूलो फलो, तब लोग फिर ऐसा न कहेंगे, यहोवा की वाचा का संदूक, यहोवा की यह भी वाणी है, उसका विचार भी उनके मन में न आएगा। न लोग उसके न रहने से चिंता करेंगे और न उसकी मरम्मत होगी। उस समय यरूशलेम यहोवा का सिंहासन कहलाएगा। हालेलुया। यरूशलेम अब कौन है? हम लोग हैं। आमीन। और सब जातियाँ उसी यरूशलेम में मेरे नाम के निमित्त इकट्ठी हुआ करेगी और वे फिर अपने बुरे मन के हठ पर न चलेगी। गारंटी दे रहा है परमेश्वर। आमीन। वो हमारे हट तोड़ देता है जब हम विश्वास जीवन में आते हैं, और इसके लिए फिर हम बारंबार परमेश्वर के पीछे जब थोड़ा भी कुछ गलत हो जाता है, हम पश्चातापी हृदय से फिर दोबारा परमेश्वर को पकड़ने की कोशिश में लग जाते हैं। आमीन। उन दिनों में यहूदा का घराना इस्राएल के घराने के साथ चलेगा और वे दोनों मिलकर उत्तर के देश से इस देश में आएंगे, जिसे मैंने उनके पूर्वजों को निज भाग करके दिया था। इस्राएल द्वारा मूर्ति पूजा। मैंने सोचा था, मैं कैसे तुझे लड़कों में गिनकर वह मन भावना देश दूंगा जो सब जातियों के देशों का शिरोमणि है। मैंने सोचा कि तू मुझे पिता कहेगी और मुझसे फिर न भटकेगी। इसमें तो संदेह नहीं कि जैसे विश्वासघाती स्त्री अपने प्रिय से मन फेर लेती है, वैसे ही हे इस्राएल के घराने, तू मुझसे फिर गया है। यहोवा की यही वाणी है। मुंडे टीलों पर से इस्राएलियों के रोने और गिड़गिड़ाने का शब्द सुनाई दे रहा है, क्योंकि वे टेढ़ी चाल चलते रहे हैं और अपने परमेश्वर यहोवा को भूल गए हैं। भटकने वाले लड़कों, लौट आओ, मैं तुम्हारा भटकना सुधार दूंगा। देख, हम तेरे पास आए हैं, क्योंकि तू ही हमारा परमेश्वर यहोवा है। निश्चय पहाड़ों और पहाड़ियों पर का कोलाहल व्यर्थ ही है। इस्राएल का उद्धार निश्चय हमारे परमेश्वर यहोवा ही के द्वारा है।
परंतु हमारी जवानी ही से उस बदनामी की वस्तु ने हमारे पुरखाओं की कमाई अर्थात उनकी भेड़ बकरी और गाय बैल और उनके बेटे बेटियों को निगल लिया है। हम लज्जित होकर लेट जाए और हमारा संकोच हमारी ओढ़नी बन जाए, क्योंकि हमारे पुरखा और हम भी युवा अवस्था से लेकर आज के दिन तक अपने परमेश्वर यहोवा के विरुद्ध पाप करते आए हैं और हमने अपने परमेश्वर यहोवा की बातों को नहीं माना है। पश्चाताप का आह्वान 4 अध्याय पहले वचन से। यहोवा की यह वाणी है, हे इस्राएल, यदि तू लौट आए तो मेरे पास लौट आ। यदि तू घिनौनी वस्तुओं को मेरे सामने से दूर करे तो तुझे आवारा फिरना न पड़ेगा। और यदि तो सच्चाई और न्याय और धर्म से यहोवा के जीवन की शपथ खाए तो जाति जाति उसके कारण अपने आप को धन्य कहेगी और उसी पर घमंड करेंगी, क्योंकि यहूदा और यरूशलेम के लोगों से यहोवा ने यों कहा है, अपनी पड़ती भूमि को जोतो और कटीले झाड़ों में बीज मत बोवो। हे यहूदा के लोगों और यरूशलेम के निवासियों, यहोवा के लिए अपना खतना करो, हाँ, अपने मन का खतना करो, नहीं तो तुम्हारे बुरे कामों के कारण मेरा क्रोध आग के समान भड़केगा और ऐसा होगा कि कोई उसे बुझा ना सकेगा। उत्तर दिशा से आक्रमण की सूचना। यहूदा में प्रचार करो और यरूशलेम में यह सुनाओ, पूरे देश में नरसिंगा फूको, गला खोलकर ललकारो और कहो, आओ हम इकट्ठे हो और गढ़ वाले नगरों में जाए। सियोन के मार्ग में झंडा खड़ा करो, अपना सामान बटोर के भागो, खड़े मत रहो, क्योंकि मैं उत्तर की दिशा से विपत्ति और सत्यानाश ले आया हूँ। एक सिंह अपनी झाड़ी से निकला, जाति जाति का नाश करने वाला चढ़ाई करके आ रहा है। वह कूच करके अपने स्थान से इसलिए निकला है कि तुम्हारे देश को उजाड़ दे और तुम्हारे नगरों को ऐसा सुनसान कर दे कि उनमें कोई बसने वाला न रहने पाए। इसलिए कमर में टाट बांधो, विलाप और हाय हाय करो, क्योंकि यहोवा का भड़का हुआ कोप हम पर से टला नहीं है। उस समय राजा और हकीमों का कलेजा कांप उठेगा, याजक चकित होंगे और नबी अचंभित हो जाएंगे। यहोवा की यह वाणी है। तब मैंने कहा, हाय प्रभु यहोवा, तूने तो यह कहकर कि तुमको शांति मिलेगी निश्चय अपनी इस प्रजा को और यरूशलेम को भी बड़ा धोखा दिया है, क्योंकि तलवार प्राणों को मिटाने पर है। उस समय तेरी इस प्रजा से और यरूशलेम से भी कहा जाएगा, जंगल के मुंडे टीलों पर से प्रजा के लोगों की ओर तो लू बह रही है। वह ऐसी वायु नहीं जिससे ओसाना या फरचाना हो, परंतु मेरी ओर से ऐसे कामों के लिए अधिक प्रचंड वायु बहेगी। अब मैं उनको दंड की आज्ञा दूंगा। हालेलुया। निश्चित दुष्ट का अंत होता है, तो दुष्टता का विरोध परमेश्वर करता है। हालेलुया। तो नुकसान या कोई भी विपत्ति या कोई भी ऐसा समय जो वो हैंडल नहीं कर पाएंगे, ये क्यों कहाँ से आता है? उनके दुष्टता की बुलावा है उनको कि चलो अब घड़ा भर गया है, अब पनिशमेंट लेने का समय शुरू हो चुका है। हालेलुया। यहूदा का शत्रुओं से घिर जाना। देखो, वह बादलों के समान चढ़ाई करके आ रहा है, उसके रथ बवंडर के समान और उसके घोड़े उकाबों से भी अधिक वेग से चलते हैं। हम पर हाय, हम नष्ट हुए। हे यरूशलेम, अपना हृदय बुराई से धो कि तुम्हारा उद्धार हो जाए। तुम कब तक व्यर्थ कल्पनाएं करते रहोगे? हालेलुया। परमेश्वर कितनी चांसेस देता है मनुष्य को। हालेलुया। क्योंकि दान से शब्द सुनाई पड़ रहा है और अप्रैम के पहाड़ी देश से विपत्ति का समाचार आ रहा है। जाति जाति में सुना दो, यरूशलेम को भी इसका समाचार दो। आक्रमणकारी दूर देश से आकर यहूदा के नगरों के विरुद्ध ललकार रहे हैं। वे खेत के रखवालों के समान उसको चारों ओर से घेर रहे हैं, क्योंकि उसने मुझसे बलवा किया है। यहोवा की यह वाणी है, यह तेरी चाल
और तेरे कामों ही का फल है। यह तेरी दुष्टता है और अति दुखदाई है, इससे तेरा हृदय छिद जाता है। यिर्मयाह का पीड़ा और दुख। हाय हाय, 19 वचन से आगे। मेरा हृदय भीतर ही भीतर तड़पता है, मैं और मेरा मन घबराता है। मैं चुप नहीं रह सकता, क्योंकि हे मेरे प्राण, नरसिंगे का शब्द और युद्ध के ललकार तुझ तक पहुंची है। नाश पर नाश का समाचार आ रहा है, सारा देश लूट लिया गया है। मेरे डेरे अचानक और मेरे तंबू एकाएक लुट गए हैं। और कितने दिन तक मुझे उनका झंडा देखना और नरसिंगे का शब्द सुनना पड़ेगा, क्योंकि मेरी प्रजा मूढ़ है, वे मुझे नहीं जानते। वे ऐसे मूर्ख लड़के हैं जिनमें कुछ भी समझ नहीं। बुराई करने को तो वे बुद्धिमान हैं, परंतु भलाई करना वे नहीं जानते। विनाश का दर्शन मिलना। 23 वचन से आगे। मैंने पृथ्वी पर देखा कि वह सूनी और सुनसान पड़ी थी, और आकाश को और उसमें कोई ज्योति नहीं थी। मैंने पहाड़ों को देखा, वे हिल रहे थे, और सब पहाड़ियों को कि वे डोल रही थी। फिर मैंने क्या देखा कि कोई मनुष्य भी न था, और सब पक्षी भी उड़ गए थे। फिर मैं क्या देखता हूँ कि यहोवा के प्रताप और उसे भड़के हुए प्रकोप के कारण उपजाऊ देश, जंगल और उसके सारे नगर खंडहर हो गए थे, क्योंकि यहोवा ने यह बताया, सारा देश उजाड़ हो जाएगा, तो भी मैं उसका अंत न कर डालूंगा। इस कारण पृथ्वी विलाप करेगी और आकाश शोक का काला वस्त्र पहनेगा, क्योंकि मैंने ऐसे ही करने की ठान लिया और कहा भी है। मैं इससे नहीं पछताऊंगा और अपने प्रण को छोड़ूंगा। नगर के सारे लोग सवारों और धनुर्धारियों का कोलाहल सुनकर भागे जाते हैं। वे झाड़ियों में घुसते और चट्टानों पर चढ़े जाते हैं। सब नगर निर्जन हो गए और उनमें कोई बाकी न रहा। और तू जब उजड़ेगी तब क्या करेगी? चाहे तू लाल रंग के वस्त्र पहने और सोने के आभूषण धारण करे और अपनी आंखों में अंजन लगाए, परंतु व्यर्थ ही तू अपना श्रृंगार करेगी, क्योंकि तेरे मित्र तुझे निकम्मी जानते हैं। वे तेरे प्राणों के खोजी है, क्योंकि मैंने जच्चा का शब्द पहलौठा जनती हुई स्त्री की सी चिल्लाहट सुनी है। यह सियोन की बेटी का शब्द है। ये सियोन के बेटी का शब्द है। ये सारा हमारे जीवन से संबंधित है। ओके, जो हाफती और हाथ फैलाए हुए यूं कहती है, हाय मुझ पर, मैं हत्यारों के हाथ पड़कर मूर्छित हो चली हूँ। हालेलुया। हम परमेश्वर को दोहाई लगाते हैं जब हमारे ऊपर दुष्ट जगत हमारे ऊपर कोई भी गंदे काम करता है, तो हम परमेश्वर को दोहाई लगाते हैं। हालेलुया। और फिर परमेश्वर कहता है उनको कि अब तू क्या कर, अब तू अपने आंखों में अंजन लगा ले, तेरी जो जादूगरी है उसका यूज़ कर, तू अपने श्रृंगार चढ़ा ले, तू लाल रंग का कपड़ा पहन ले और देख तेरी शक्तियाँ तेरा साथ देती है क्या। ओके, तो वो परमेश्वर कहता है अब तो निकम्मे हो चुके हैं, तेरा कोई शक्तियाँ काम नहीं करने वाला। हालेलुया। तो इस प्रकार से परमेश्वर हमको बचा लेता है उनके शक्तियों में से, जब हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर को। थैंक यू जीसस। हम 2 साल का बाइबल रीडिंग प्लान देखेंगे। पिता, तुझे धन्यवाद करते हैं कि आज के समय तूने जो वचनों का हमारे अंदर बैठने का रास्ता बनाया और हमारे जीवन को बदलने का रास्ता दिया, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। पवित्र आत्मा आगे का और भी वचन हमारे मन में खुलता जाए, उसके भेद हमारे मन में प्रकट होते जाए और ज़्यादा हम तेरे भेद से, तेरे प्रकाशनों से भरते जाए। नासरी यीशु के नाम में हमारी समझ तेरे वचनों की ओर खुली रहने दे, बंद हो जाने मत दे। यीशु के नाम में मांगते हैं खुदा, सुन और कबूल कर। आमीन, आमीन, आमीन।
2 years बाइबल रीडिंग प्लान, 2 साल का बाइबल रीडिंग प्लान, जॉन 6 चैप्टर 30 वर्स से 40 वर्स तक, 2 किंग्स 4 चैप्टर, यूहन्ना रचित सुसमाचार 6 अध्याय का 30 वचन से 40 वचन तक, और दूसरे राजाओं की पुस्तक 4 अध्याय। हम यूहन्ना रचित सुसमाचार को परमेश्वर का आत्मा हमको सिखाता है, और दूसरे राजाओं की पुस्तक 4 अध्याय परमेश्वर के आत्मा जो हमको सिखाता है। हमने उन सारी बातों को अकेले में बैठकर व्यक्तिगत समय में, पर्सनल टाइम में, हमने पवित्र आत्मा जो सिखाता है उसे सुनना है और ग्रहण करना है, हमारे समझ को उसके अनुसार बनने देना है। हाँ, और 2 साल के अंत में देखेंगे परमेश्वर चाहता है हमें उस मंजिल में हमें लेकर जाने का, वो रास्ता चलाता हुआ लाया होगा, और ऐसा हम परमेश्वर के आत्मा ही के कारण कर सकते हैं, सीख सकते हैं। हमें परमेश्वर का आत्मा, अनुग्रह का आत्मा वही कारण से हमारे अंदर आया है निवास करने के लिए। हालेलुया, कि हम वचन को सीख कर परमेश्वर चाहता है उस योग्यता को धारण कर पाए। आमीन। प्रभु यीशु मसीह का आत्मा जो हमारे अंदर है, अनुग्रह का आत्मा, निश्चित हमने उस अनुग्रह के आत्मा का लाभ उठाना है। प्रभु यीशु मसीह हम सबके साथ बना रहे। आमीन, आमीन, आमीन। थैंक यू फादर गॉड। पवित्र आत्मा, तू वचनों को हमारे अंदर फिट एंड फिक्स कर, और तेरे वचन हमारे अंदर परमेश्वर तू ईश्वरीय रचना में ढलने के लिए इस्तेमाल कर, हमें डिवाइन ऑर्डरलीनेस में लेकर आने के लिए इस्तेमाल कर। नासरी यीशु के नाम में मांगते हैं पिता, सुन और कबूल कर। आमीन, आमीन।